نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، آپ ان تمام عبادات کو کھول کر دیکھ لیں، یہ انسان کو تربیت کے مرحلے سے گزارتی ہیں۔ اور انسان ان عبادات کو صحیح طور پر جب بجا لاتا ہے، عملاً جب ان عبادات کو اخلاص کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، تو اس کی ایک بہترین تربیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے اور اس کے روزے فرض کیے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ روزہ بہت بڑی تربیت کرتا ہے انسان کی۔ روزہ انسان کو مجاہدے کی تربیت دیتا ہے۔ انسان مجاہدے کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنا اپنے نفس کے خلاف۔ تو رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں، ہم بہت سارے کام اپنی طبیعت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو رمضان اور روزہ یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہاں لوگ اٹھتے ہیں سحری کے وقت؟ کہاں وہ وقت ہوتا ہے جاگنے کا، بیدار ہونے کا؟ اور آج جس معاشرے میں ہم ہیں، اس معاشرے میں تو وہی ٹائم اللہ ماشاء اللہ لوگوں کے سونے کا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں سحری کو اٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ وہ کریم ہے نا، بے نیاز ہے، چاہتا تو یہ حکم فجر کے فوراً بعد بھی رکھا جا سکتا تھا۔ فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے تمہیں سحری کھانی ہے، یہ خلاف طبیعت ہے۔ اور ظاہر ہے جس کو کھانا ہے اسے کچھ وقت پہلے اٹھنا ہے، اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے، پہلے بنانا ہے تو ہی کھانا ہے۔ تو انسان پر اگرچہ یہ مشکل تھا، لیکن اس سے کہا گیا کہ اس مشقت کو برداشت کر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ جس مشقت سے ہمیں گزارتا ہے، ہمیں پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ روزہ بہت بڑا مراقبہ ہے۔ کس بات کا مراقبہ؟ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مراقبہ۔ آپ اکیلے ہیں گھر میں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، فریزر کے اندر سارا کھانا موجود ہے، آپ اطمینان سے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ یہ تربیت کرتا ہے، مجاہدہ کراتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مشق پک جائے نا باقی 11 مہینوں میں بھی، تو تنہائیاں پاک ہو جائیں گی، ساری مزاج پاک ہو جائے گا۔ جس طرح اگر صبح سحری میں اٹھنا پک جائے تو فجر کیا تہجد کی مضبوطی بھی نصیب ہوگی۔ یہ ایک مشقت اور ایک تربیت روزے نے ہماری کی۔ اور میں آپ سے عرض کروں، کبھی اس نظریے کو پکا کے دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ بیٹا اس ذہن کو اچھی طرح پکا لو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کو پختہ کر۔ پھر تو یوں ہے کہ انسان کا سارا وقت ہی معیاری اور قیمتی ہو جائے گا، پھر تو وہ مسجع مکفّع شگفتہ زندگی گزارنے لگے گا۔ تو روزہ عملاً اس کی مشقت کراتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے نا، تو اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے جو سب سے برا برتن بھرا ہے وہ پیٹ ہے۔ روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، مشقت ہمیں روزے کی صورت میں جس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، وہ کس قدر انقلاب برپا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر ایسے رواں دواں رہتا ہے جیسے خون، پس چاہیے کہ بھوک کے ذریعے شیطان کا رستہ روکا جائے۔ اب دیکھیں دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے نوجوانوں سے بھی فرمایا کہ یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ مشق روزے کی اگر کی جائے تو یہ نفسانیت کو کنٹرول کرتی۔ تو رمضان المبارک ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا اس کا خیال رکھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پہنچ میں بہت ساری حلال چیزیں ہیں تو آپ ساری کھاتے ہی جائیں اور صبح و شام آپ کھاتے ہی جائیں۔
اس سے بھی کئی دفعہ انسان کو بہت نقصان سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر روزہ ایک اور ہماری تربیت کرتا ہے، جب تک انسان بھوکا رہتا نہیں نا، اسے بھوکوں کا احساس نہیں ہوتا، غریب پروری نصیب نہیں ہوتی۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر۔ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، بھوکا رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ کھانے رکھنے والے، بہت زیادہ مال رکھنے والے، بہت زیادہ وسعت رکھنے والے اندازہ کریں کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی افطار ہو جائے گا، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی خواہشات کے خلاف انہیں مشقت کرنا پڑتی ہے، تو اس شخص کے دکھ کا بھی تو اندازہ کریں۔ اس کے پاس کھانا موجود ہی نہیں ہے، اسے بھوک ہی بھوک کاٹنی۔ تو یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح روزے میں ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے نا، اسی طرح گناہوں سے بھی رکنا ہے، اس لیے کہ روزہ حصول تقویٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم رکے ہوئے ہیں کھانے سے، پینے سے، عمل زوجیت سے، تو اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہے حرام سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو عملی تربیت رمضان المبارک ہماری کر رہا ہے کہ جس طرح ہم پرہیز کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا بعض لوگوں کو جن کی طبیعت بڑی تیز ہے، بڑی جلدی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اگر کسی نے سخت بات بھی کر دی تو اس نے کہا جا یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس رب کی رضا کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، اسی مالک کی رضا کے لیے آپ جھگڑا چھوڑ بھی دیں، آپ درگزر کا مزاج بھی پیدا کریں، یہ والا روزہ بھی تو کبھی رکھے نا۔ اور پھر روزہ ہمارا قرآن مجید سے رشتہ بڑا مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جتنا موسم بہار رمضان میں ہوتا ہے نا، تلاوت قرآن مجید کا مشق ہو رہی ہے، قرآن مجید یاد کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ذوق شوق سے تراویح میں کھڑی ہے، قرآن مجید سن رہی ہے، گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے۔ تو روزہ تربیت کر رہا ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جاؤ، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، قرآن مجید کے قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینا شروع کرو۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو رمضان المبارک ہمیں پابندی اوقات کا بڑا درس دیتا ہے۔ آپ کو فجر سے پہلے کھانا ہے، یہی وقت ہے، اس کی آپ کو پابندی کرنی ہے۔ اگر فجر ہو گئی، اذان ہو گئی، تو آپ ایک لقمہ اپنے گلے سے نہیں اتار سکتے، آپ پر پابندی ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا، اسی ٹائم کے اندر آپ کریں گے یہ کام۔ اور پھر افطار بھی آپ کو مغرب کی اذان سے کرنا ہے، وقت مغرب، آپ اس سے 5 منٹ پہلے افطار نہیں کر سکتے، اور بہت دیر کر دینا افطار میں وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی وقت کے اندر آپ افطار کریں۔ تو رمضان المبارک وقت کی پابندی کا بڑا درس دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، جلدی اٹھ جاؤ، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کریں، تیاری کریں، اہتمام کریں۔ شام کو بھی جو رش دکانوں پہ اور جو رش کھانے کی جگہوں پر افطار کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر پابندی کر رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں، ہمیں اسی طرح باقی اپنے سال میں بھی اس مشق کو جاری رکھنا چاہیے۔ وقت پر نماز پڑھیں، اٹھ کر وقت پر اپنے سارے کام سر انجام دیں، دینی اجتماعات ہوں یا کوئی دیگر تقریبات ہوں، وقت پر شروع کریں، وقت پر اس کو ختم کریں۔ اوقات کار کی مصروفیات کی جو تربیت رمضان شریف کرتا ہے، اس تربیت کو پورے طور پر اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہماری تربیت کر رہا ہے، اس تربیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے میں روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس عملی مشق سے بھی گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں رمضان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا،
किसी को आप नौकरी पे रखते हैं, उसके साथ मुआहदा ये होता है कि ये तुझे रहने के लिए मकान दिया जाएगा, 3 वक्त का खाना दिया जाएगा, 2-3 दफ़ा पीने को चाय मिलेगी, और इतनी तनख्वाह हम हर महीने तुम्हें अदा करेंगे। और फिर ड्यूटी ये है कि ये मशीन है, इस पर तुमने सुबह 8 बजे से 4 बजे तक काम करता है। अब वो शख्स क्या करता है, वो तनख्वाह भी वसूल करता है, मकान पे भी कब्जा कर लेता है, और वो 3 वक्त खाना भी खा लेता है, चाय भी पी लेता है, महीने के बाद तनख्वाह भी वसूल कर लेता है, पर मशीन पे खड़ा नहीं होता। उसका मालिक उसे रखेगा, बोलते नहीं आप ना, रखेगा उसे, छुट्टी करा देगा। वो कहेगा तू कितना अजीब आदमी है कि अब जो मुतालबा तेरे थे वो सारे पूरे हो गए, और जब मेरा मुतालबा है तो तूने पूरा ही नहीं किया। इख्तलाफ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मालिक नाराज हो जाएगी। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने अल्लाह की दी हुई ज़मीन पर गुजारा भी किया, उसका दिया हुआ रिस्क भी खाया, अल्लाह ने औलाद दी हमें, अल्लाह ने सेहत दी, सारा कुछ दिया, तो जो मुतालबे हमारे थे वो तो सारे पूरे हो गए। और जो रब का मुतालबा था कि मेरे कुर्ब के वस्ते का सफ़र करो, तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, मेरे रास्ते में मुजाहिदा करो, जद्दोजहद करो, आगे बढ़ो, वो हमने कब करना, वो उसकी मनसूबाबंदी कब होगी, अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना। हमारे सूफियाना रोज देखा करते थे कि आज हमारे दिल में हमारे रब की कितनी मोहब्बत है, आज कितना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ बढ़ूं, रोज जायका महसूस करते थे, तलब पैदा करते। हमारे मिजाजों के अंदर हर चीज की तलब पैदा हो गई है, लेकिन वो जो एक खास ज़ौक था ना अल्लाह के कुर्ब का, उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी तरफ बढ़ना, महसूस करना कि मेरा रब है, महसूस करना कि मैं किसी का बंदा, मुझे कोई रिज़्क़ देता है। हमारे सूफिया, औलिया, सहाबा, अहले बैत, अंबिया, ये हर वक्त महसूस करते थे कि मैं कोई शुतरे बेमुहार नहीं, कोई मेरा है जो मुझे बनाने वाला है, जो मुझे नवाजने वाला, जो मुझे अदा करने वाला। वो अपने रब की चाहत करते, अपने रब से मोहब्बत करते, अपने रब की तलब पैदा कर, शौक बढ़ाते रोज इबादत का। उनके अंदर एक जज्बा था, दोनों रोज परवान चढ़ता था। 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद वो इशराक पढ़ते, चाश पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, सलातुल लैल पढ़ते, वो कुरान पाक की तिलावत करते। जब भी कभी उनका ज़ौक आता तो वो दुनिया से कट के मुसल्ले पे आके बैठ जाते, लेकिन वो दर्द, वो जायका, वो कैफियत, वो चीजें मान पड़ती जा रही। कौम अगर कभी को मसला पूछती है तो बड़ा आर्जी सा, रब दा तालिब कोई ना मिले, जो मिले तालिब जरदा हो। उमर सुल्तान भाई फरमाते हैं कि मतलब किधर गए लोग जो रब को तलब करते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत का ज़ौक हमें नसीब हो, वो कहाँ गए। हमारा एक मकसद था, देखिए बड़ा प्यार आता है अल्लाह को उस बंदे पे। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैंने इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ज़मीन पे नायब बनाऊंगा। कालू अताजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया मैं ज़मीन पे नायब बनाने वाला हूं। तो कहने लगे या अल्लाह वो तो फसाद फैलाएगा, खूनरेज़ी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुम जानते हो वो मैं, जो मैं जानता हूँ वो तुम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं वो क्या था जिसको फरिश्तों को नहीं पता था। फरमाते हैं ये वही इंसान के अंदर जो अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी होने का जज्बा था, फरिश्ते उसे डालते। लोहे महफूज पे ये तो पढ़ दिया था कि ये फसाद करेगा, ये तो पढ़ा था कि अबू जहल फसाद करेगा, ये नहीं पढ़ सके थे कि अबू बकर रोया भी करेगा। ये तो पढ़ लिया था उन्होंने, ये तो पढ़ लिया था कि अखनस बिन शुरैक तलवारें निकाल के लोगों को कत्ल करेगा। ये नहीं पढ़ा था कि मौला अली शेर खुदा मजदूरी करेंगे और जो मजदूरी मिलेगी वो अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दिया करेंगे। ये तो उन्होंने पढ़ लिया था कि अबुल बुख्तरी, अबू लहब ये लोगों के गले काटेंगे। और ये नहीं पढ़ा था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहत के ज़माने में भी करोड़ों का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करे। वो जो इंसान के अंदर तलब है, वो जो तरफ है, वो जो शौक है, वो जो कैफियत है, वो जो मार्फत का नूर है, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद हो, ये बड़ा ही पसंद। इसलिए हदीस कुर्सी में रब फरमाता है मुझे तलाश करना हो तो टूटे हुए दिलों में तलाश किया, टूटे हुए दिलों। अब वो मैं मार्फत की क्या बात करूंगा, पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ भी कहीं से चलो पढ़ के तो करूँ कहाँ। मैं तो अभी तक लोगों से 5 नमाजों का वादा ले रहा हूँ। वो मार्फत की बात, कुर्ब इलाही का रास्ता, वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बड़ी आगे की है। अभी तो हम ये वादा ले रहे हैं कि दाढ़ी रख लोगे, सच बोलोगे, हलाल खाओगे। मतलब वो जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो जो जज्ब है, वो जो कैफियत है, वो जो इबादत है, वो जो तरफ है, और वो फिर जो एक मकाम है कि इंसान अपने रब की इस तरह इबादत करे कि वो अपने रब को देख रहा है, वो जो एक मकाम है
और कम से कम ये ना हो तो हुजूर फरमाने लगे इतना तो हो कि रब तुझे देख रहा है, लेकिन वो तो दर्जा है ना बड़ा आगे, हम उससे बड़ा आगे की बात तसव्वुर करते हैं, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए उसे जरूरी करार दिए। भाइयों थोड़ा सा ना आगे उठ के, मतलब बड़े बड़े आदमी बन गए हम लोग, बड़े आदमी कैसे बन गए कि जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं होती थी उसके अकाउंट में करोड़ों आ गया तो वो कहता मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। जिसके पास साइकिल नहीं थी तो अब वो 1.25 करोड़ की कार पे बाजारों पे बैठते हैं तो कहते मैं बड़ा आदमी। तो इस तरह कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। बड़ा तो तू तब बनेगा जब तेरे दिल में रब की मार्फत बड़ी हो, जब अल्लाह का कुर्ब बना होगा, जब तुम मुतलाशी होगा उसके रास्ते का। बहुत सारे रास्ते हैं अल्लाह की तरफ जाने के, लेकिन 3 बातें कुर्ब इलाही के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जबरदस्त लिखी हैं। सबसे पहली बात यह है, सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल है? तो बस जी, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा ताकू मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है, लेकिन ना बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तो क्या है? उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत रहम करने वाला है। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए, वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना, तो रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना हर वक्त में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो माँ की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती, मेरा बच्चा। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हो। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती। और उसकी हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बड़ा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? तो सहाबा कहने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदे पे रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं, सुबह से शाम तक ना। आज आपने जुमे से लेकर तरावी तक, इशा तक, वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दे, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाए। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करे, चलना बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करे। एक कारोबार भी नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको हाथ छोड़ दे, मेहरबानी करे। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करे, उस पर तो गौर फरमाए। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरत रवायत लिखी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे तो यकायक एक देहाती अराबी आया, यकायक अंदर दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम कहा। बंदा बड़ा सादा था, ये भी नहीं पूछा कि बातें क्या हो रही थी, कोई सवाल जवाब नहीं। सलाम लेने के फौरन बाद अर्ज करता यार रसूलल्लाह एक मसला पूछना था। कहते हम हैरान हो गए कि यार पहले पूछ तो ले, पहले क्या बात हो रही, आते ही अपनी छेड़ दी है। एक मसला पूछना था हुजूर, तो फिर मैं पूछो। अर्ज करने लगा हुजूर ये बताए क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? तो महबूब मुस्कुराए, फरमाया बोले आदमी सादी सी बात है, हिसाब अल्लाह ने लेना है। कहते तो बात सुन के ना तो चल पड़ा, जवाब सुन के तो चल पड़ा, रुका ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर तो जा, पहले तो तू आया है, सलाम ली है, बात भी कोई नहीं करने दी, आराम से अंदर दाखिल हुआ और सवाल का जवाब लिया और फिर तूने तबसरा ही नहीं किया तो निकल गया। या रसूलल्लाह हुक्म करे। फरमाया क्या पूछ रहा था? हुजूर पूछा है कि हिसाब कौन लेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मैंने बताया अल्लाह लेगा, तो बोलना क्यों नहीं? कहने लगा या रसूलल्लाह बस इतना ही पता करना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना तो फिर हमें बाकी जाना है इंशाल्लाह, तो फिर बाकी जाना है। तो हुजूर फरमाने लगे किस तरह? कहने लगा या रसूलल्लाह जब वो करीम गालिब आएगा ना, जब उसका गलबा आएगा तो वो बड़ा करीब है, उसने माफी करना।
उसने माफ ही करना है, उसने करम ही करना है। अदल करे ते थर थर कंबल, अदल करे ते फिर थर थर कंबल उच्चियां शाना वाले, ते फजल करे ते बख्शे जावा मेरे जाए मुंह खा ले। फरमाया उसने माफ ही करना है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया ठीक है तू जा। वो चला गया तो हुजूर होने लगे। फरमाते हमने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा सादा था पर बात बड़ी खरी कर गया है, बड़ी खरी बात कर गया है। करीम जब गालिब होता है तो नाफ ही फरमाता है। तो भाई सादे लोगों को भी पता था कि अल्लाह की रहमत की बात हमारे घरों में, हमारी वो गुफ्तगू में, हमारा एक दूसरे से मिलना, नाराज ना होना, मायूसी की बातें करते, मायूसी। मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ कि कोई बंदा मुझे मिले और आके कहे मैं बड़ा राजी हूँ, बताएं अल्लाह का शुक्र कैसे करना। मैं इंतजार में हूँ, इतने सालों में मुझे बंदा कोई नहीं मिला। जो मिला उसने ये कहा परेशान बड़ा दुआ कर दे, बड़ी अजियत है, सबसे ज्यादा मैं ही था हूँ, कुछ करे, कोई वजीफा बताए, कोई तावीज दे, कोई मिले ना यार, कोई मिले, कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और मैंने तालीम के लिए सिर्फ और इजहार नेमत के लिए, तशक्कुर के लिए कई दफा आपके सामने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले शायद किसी को ना मिले, और मैंने इजहार तशक्कुर के तौर पर कहा है फिर किस तरह के शागिर्द मुझे मिले हैं इतने अच्छे फरना बरदार शायद किसी को ना मिले, और जिस तरह के सादे और दरवेश माँ बाप अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अब तो बड़े तेज लोगों का जमाना है ना, शायद कहीं मुयसर आए। और मैं कहा करता हूँ इतने फरमा बरदार मुरीद भी नहीं मिलते, लोग तो कहते हैं फरमा बरदार नहीं मिलते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार ताबेदार हर लिहाज से अच्छे मिले। उसकी वजह यह है कि जैसे मुर्शिद अल्लाह ने हमें अता फरमाए ऐसा किसी को अल्लाह ने अता, तो शुक्र करे अल्लाह की नेमतों, शुक्र करे। बस जहाँ बैठेंगे जुमले टूटेंगे, जहाँ बैठेंगे परेशानी। मुझे कुछ बंदे ऐसे मिलते हैं दुनिया में जो सिर्फ अकेले ही ठीक है, यानी अब्बा जी ने भी जुल्म ही किया सारी जिंदगी, अम्मा ने भी जुल्म ही किया, उस्ताद भी सारे गलत मिल गए, और हर बंदा ही उन्हें फिर बाद में औलाद मिली तो नाफरमान ही मिल गई। तो मैं कहता हूँ यार ये हो नहीं सकता। वैसे महाराज चलो अगर तू कहता है तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कुछ सालेहा ऐसा हो गया हो, अल्लाह की रहमत की बात करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सादा था पर दुआएं तो पते की कर गया। यहाँ तक लिखा इमाम सफूरी ने कि कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे के लिए दोज़ख का हुक्म देगा, बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है, फरिश्ते जंजीरें डाल के खींच कर ले जा रहे, बंदा जा रहा है दोज़ख की तरफ, फरिश्ते खींचते रहे तो फिर मुड़ के पीछे देखता है। तो जो है मेरी बात पर इधर देखना जरा, वो कई दफा किसी को खींचते हैं ना तो मुड़ के पीछे देखता है। चलो आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। वो जब स्कूल जाने को दिल नहीं ना करता था जी, उनके सिलेक्शन देने ना बड़े बच्चे वालों, और बड़ा 1.5 घंटे का, बच्चे नाराज ना हो जाए। जब वो कभी जिस नलायक का स्कूल जाने को दिल है और उसको खींचते थे तो वो पलट पलट के पीछे जाते थे। इसी तरह मदरसे में भी जब आते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते नहीं तो खींच के नहीं ले जाते, कई दफा उन्हें खींच के फरिश्ते जहन्नुम की तरफ ले जा रहे, खींचते हैं तो पलट के फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते खींचते हैं फिर पीछे देखता है, फिर फरिश्ते पूरा नजारा देखना, दोज़ख को ले जाने, पलट पलट के अल्लाह की तरफ देखता है, दोज़ख का दरवाजा आ गया, फिर पीछे देख रहा है। रब करीम ने फरमाया इसे वापस बुलाओ, रहमत दा दरिया नाहिर, बुलाओ इसे वापस। वापस आया, अल्लाह ने फरमाया और बता को पलट पलट के क्या देखता था? वैसे अल्लाह को नहीं पता क्या देख रहा है, क्या देख रहा था? तो रो पड़ा, अर्ज समझने लगा मालिक मेरा यकीन था कि तू बड़े ही करीब है, अल्लाह मेरा ईमान था तू बड़ा रहीब है, अल्लाह मेरा ज़हन था तू माफ करने वाला है। जब फरिश्ते खींचते थे ना तो शैतान मुझे कहता था तू जहन्नम में जाएगा, पर मेरा यकीन कहता था नहीं रब ने माफ कर देना है, अल्लाह ने माफी दे देनी है, बख्शा जाऊंगा। फिर शैतान कहता था कि फरिश्ते खींचते थे, मैं कहता था नहीं माफी मिल जाएगी। या अल्लाह दोज़ख का दरवाजा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी, अल्लाह दरवाजा जहन्नुम का आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी। और जब मैंने आखिरी दफा पलट के देखा तेरी आवाज आई कि वापिस लाओ, तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ले भाई तेरा यकीन जीत गया है, तेरा ईमान जीत गया है, तेरे अंदर की रूहानियत कामयाब हो गई। बंदे और रब की बातें हो रही है तो फरिश्ते चुप करके खड़े, तो रब ने फरमाया तुम खामोश खड़े और की अल्लाह इसका करना क्या है? फरमाया करना क्या है? जो मेरी रहमत की इतनी ज्यादा उम्मीद रखे उसे जहन्नुम में डाल दो, ये कैसे हो सकता है? इसको पकड़ो और मेरे फजल के साथ इसे जन्नत अता डाल दो। तो पहली बात यह है कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखी, सुबह से शाम तक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? एक होते तकब्बुर के तौर पर बड़के मारने के लिए जिक्र करना, वो मलय है, डींगे नहीं मारना, बल्कि अल्लाह की रहमत का जिक्र करे, तशक्कुर के लबो लाए दे, तशक्कुर के लबो लाए। हमारे ना लफ्जों से शिकवे छलकते, हमारे जुमलों से छलकता है कि हम परेशान हैं, हमारी बातों से महसूस होता है कि हम किसी वजह से बड़ी तकलीफ में है, इसको निकाल दे। जब बंदा अल्लाह की रहमत की उम्मीद करेगा तो अल्लाह भी फिर रहमत, फजल और करम के बादल ही बरसाएगा। दूसरी बात हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अगर अल्लाह के कुर्ब का रास्ता तय करना है तो वो इस तरह मिलेगा कि अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो जाओ। जहां अल्लाह ने मुझे बिठाया मैं राजी हो जाओ, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को बिठाया है वहां मेरा भाई राजी हो, जहां जहां अल्लाह ने हमें बिठाया है हम उस जगह पे राजी।
मामला पता क्या है, हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं, अब मर्जी तो अल्लाह की चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा तुम कौन हो? हुजूर मोमिन, फरमाई ईमान की दलील दो। तो ये बात मुझसे को पूछे तो शायद मैं झगड़ा करूं कि ईमान की दलील। हुजूर ने फरमाया कौन हो? या रसूलल्लाह मोमिन। फरमाया दलील दो। हुजूर दलील है हमारे पास। दो। या रसूलल्लाह अल्लाह नेमत देता तो हम शुक्र अदा करते हैं, मुसीबत डाले तो सब्र करते हैं, और जो फैसला अल्लाह हमारे हक में कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। मेरे माबूद का चेहरा खुशी से खिल उठा। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, तुम तो वाकई बड़े पक्के मोमिन, तुम मोमिन हो, अगर अल्लाह के फैसलों पे राजी रहते हो तो फिर तुम। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। मिजान अमल तो लवाए? वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे याद है? तो कहेंगे खुदा के फजल से याद है। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हद फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाया इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत को ही तो वजह हो गई। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते, हमें कोई शिकवा उस पर रहता। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखना जरा मेरी तरफ, अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ लोग ना जी कहते डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी, तो जी गलती की है नाम इकबाल ने, रखनी चाहिए थी उन्हें। बता दो आप लोग, जो जिसकी गलती है वो उसकी ये गलती हो गई उनसे, उन्होंने नहीं ठीक किया। अब इकबाल के दाढ़ीदार रखने से क्या सुन्नत की मुखालफत पर उसे डिग्री दी जाएगी? वो मैं क्यों ना हो, जो काम खिलाफ सुन्नत है वो बाहर हाल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इकबाल ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी, बाकी सारे काम अच्छे किए, तो आप बाकी के तो सारे अच्छे कर लेना। इकबाल ने जो काम किया, जो दीन का दर्द दिया, जो पैगाम दिया, जो जद्दोजहद की, उसको तो समझ लो ना। मतलब सिर्फ देरी पे आके दलील पकड़ते हो। अल्लामा इकबाल ने मकान भी नहीं बनाया अपना, कितना बड़ा आदमी है, कोई जायदाद है उसकी, तुझे भी छोड़ो मकान सारे। इकबाल वो देखे ना, बाबे बुल्ले शाह की लोग मिसाल दे देंगे, बाबा साहब मजबूब आदमी थे, तो बाबा साहब के हिस्से में तो कई मरबे जमीन आती थी, वो भी उन्होंने नहीं दी। हमारा मलाल रोटी का उसको पता है, नोटों का भी पता है कि 5,000 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, बाकी टाइम वो बाबा बुल्ले शाह बन जाता है। ये कौन सा स्टाइल है कि मर्जी की चीज आई तो काबू कर ली? तो डॉक्टर इकबाल ने ये दुरुस्त किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा नजरिया है कि अल्लाह उसकी ये खता माफ कराएगा, पर बंदा बड़ा बाकमाल था, ये बड़ी खूबी थी, और उसमें भी कुछ हिकमत होगी, कुछ बातें ऐसी उन्होंने लिखी हैं बाद जगहों पे। लेकिन इकबाल की जो मार्फत है, जो हुस्न है, जो वक़ार है उनके लबो लहजे में, उसका इनकार किया जा सकता नहीं। लेकिन इसको हम डिफेंड भी नहीं करते, जो किसी में कोई कमजोरी है वो बहरहाल उसकी है। एक सवाल बड़ा उठता था, लोग कहते थे कि आप रोज दाढ़ी की बात भी करते हैं और अल्लामा इकबाल की बात भी करते हैं, तो मैंने आज उसकी वजाहत कर दी, बात की समझ आ रही आप हज़रात। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है, इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था, छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी, बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुरका किया हुआ था। जो कि उसने नकाब ओढ़ा था मुसलमानों की निशानी थी, नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह को खुश रखे। तो कहते वो निशानी तो क्या इस्लाम की थी, तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है मेम साहब, भाई ये बुरका पहना हुआ है, तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुरका? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़िए, बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खावन भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला, ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी ये आज है ना, तो इसलिए आज के जमाने में नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहते हैं मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, अब वो पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे।
कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई। किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहें। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते हैं उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। मैंने कहा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने को पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रंग के फैसले में बड़ा राजी हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया उसका माल था। और यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी कहते दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं बोलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह की फसल है, कच्ची बड्डे ता भी होती। सुना है आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे है पक्की लै जाते ता नहीं है जो होती। तो जब उसका जी था वो ले गया। अल्लाह अकबर। और खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया। मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की, मैंने कहा खरीद। कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई हूँ और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निज़ाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ में रहूंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। 3री मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह वो बड़ा बेलियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाब इजराइल पहले आ गए और कहते हैं गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, ये सोना ही मेरे दुख विच राज़ी। फिर सुख नु चुल्ले दावा। कहते हैं वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तो बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारिस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पक्का जो फालू थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रवा में बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे साथ का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी का कलमा पढ़ जा। क्या मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। एक हदीस ना पढ़ लो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला, बेटा शदीद बीमार, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूँ। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा गुलाब तक था रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हज़रत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है, कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हो,
फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामन के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? अब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब ज़ौजा रोई, अब सब्र वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टप के आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हज़रत अबू तलहा उठे, कामते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए, फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे कि या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज़ भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहे या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तो रोज भी कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तो रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कहीं नहीं दे, अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज़अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं कर को? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखिए ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल कलेजा जान औलाद हर चीज निकाल के रख दी, तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तो राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिली नहीं को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हुए, मिली नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीब के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाए कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे नहनु करबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनों अंदर जाना तो फिर मकैयत जाना, जे मैं तेनों बाहर जाना तो अंदर कौन समानो, अंदर भी तू है कि बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसब्बुर करे कि अल्लाह मेरे साथ है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफ़ा जो पढ़ा करो, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफ़ा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से मस्जिदों के दरवाज़ों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, कैमरे की आंख देखिए तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें? और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे जितने दफा अगर को डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, इतने दफा बोले तो सिर्फ। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, चुनाव पूरा काबू में आ गया, आपको रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया,